and now we will be moving on to our next topic, that is of section B, and the name of the topic is dams. So today we are going to discuss about the dam and its types. So since it is a revision class, so we have to be a little bit quick about this. So what is a dam? Dam is a hydraulic structure of fairly impervious material which is built across a river to create a reservoir on its upstream side for impounding water for various purposes. Actually, what happens, we have to store water and use it for many purposes like irrigation or electricity generation or water supply or for controlling a flood or for recreational purpose, navigation purpose, etc., etc. All these purpose can be served by ponding the flowing river. Okay, by storing some water on some location. Okay, so a dam is constructed of such a material so across a river, across a flowing river, so that it can create a reservoir on its upstream side. Okay, so uh, if the dams are small, then only one or two purpose out of all these purpose like hydropower or water supply is served. And uh, when a very big dam is constructed, then it can serve many purposes at the same time. Okay, so we can say that they are classified as single purpose dam and multi-purpose dam. Okay, single purpose which serve only one purpose, and multi-purpose dam which serves multiple purpose at the same time. Okay, so now we move on to its types. What we have discussed right now, we have discussed that it can be classified as single purpose and multi-purpose dam depending upon its purpose served. Okay, so here you can see a dam is constructed across a river, and this area is the upstream side of the river. Okay, and this is the pondage developed here. Okay, next, what are different parts and terminologies of the dam? First is crest. What is crest? It is the top of the dam structure. Okay, मतलब क्रेस्ट क्या होता है, ये डैम का अपर पोर्शन होता है जहाँ पे रोड बनाया जा सकता है या जहाँ पे वॉकवे प्रोवाइड किया जा सकता है. एंड व्हाट इज पैरापेट वॉल्स? पैरापेट वॉल्स जो लो प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं रोडवे के साइड में, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करती हैं पैरापेट वॉल्स. हील, अपस्ट्रीम साइड रिवर बेड का जो अपस्ट्रीम साइड है डैम में, जो अपस्ट्रीम साइड में जो डैम का बॉडी होगा वो जो, हाँ, एंड वन थिंग कि जो कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के साथ में अपस्ट्रीम रिवर साइड में डैम का बॉडी, दैट विल बी द हील. एंड टो क्या होगा, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा डाउनस्ट्रीम साइड रिवर का, ठीक है, डैम की बॉडी का. सो दैट विल बी टो. स्पिलवे क्या होता है, ये इसका अलग अलग लोकेशन हो सकता है एक्चुअली. स्पिलवे का ये डैम के ऊपर, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है डैम की बॉडी के विद इन बनाया जाता है, या उसके एंड्स पे बनाया जाता है, या मिडिल पे बनाया जाता है, डिपेंड्स अपॉन द सुटेबिलिटी. So what is a spillway? It is a kind of passage near the top of the structure which uh, serves the purpose of passing the excess or surplus water from the reservoir. Okay, जब भी एक्स्ट्रा पानी आता है वो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर को रिजर्वायर में से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ भेजने का काम करता है स्पिलवे. So it is one of the important portion of the important construction done in the dam. Next is abutments. The valley slopes on either side of the dam wall to which the left and right end of the dam are fixed to. जैसे रोड में हम लोग ब्रिज में बनाते हैं वैसे ही डैम के भी जो दोनों एंड्स पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट इज abutment. ठीक है. What is gallery? Gallery is a level or gently sloping tunnel like passage. Okay, it is a kind of passage, tunnel like passage at transverse or longitudinal, within the dam, within the body of the dam, with drain on floor for seepage water. So what does this gallery does?
It uh, passes on the water from within the body of the dam. And a slope is also provided. Okay, so why this gallery is provided? So that for having space for drilling grout holes and drainage holes in the body of the dam. Okay, so that maintenance work can be easily carried out. And one more function it serves is like these may also be used to accommodate the instrumentation for studying the performance of dam. Okay, सो इट इज़ अभी इसका नीचे डायग्राम दिखाई देगा ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे है. एंड व्हाट इज स्लूस वे इज ओपनिंग इन द स्ट्रक्चर नियर द बेस ऑफ द डैम टू क्लियर द सिल्ट एक्यूमुलेशन इन द रिजर्वायर. ओके, जो भी आपका सिल्ट मटेरियल आ रहा होता है रिवर फ्लोइंग रिवर के साथ में वो डैम की बॉडी के साथ में लगेगा और वहाँ पे जमा होने लगेगा. तो इसको डैम की बॉडी में डाउनवर्ड पोर्शन में बनाया जाता है और इस तरीके से बनाया जाता है कि जो भी सिल्ट आया है उसको हम लोग रिमूव कर सकें. ठीक है, सो जैसे मैंने बोला था अभी आपको नीचे डायग्राम दिखेगा. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हो गया अपस्ट्रीम साइड, दिस इज अपस्ट्रीम साइड, दिस इज डाउनस्ट्रीम साइड. ओके, these are parapet walls, this is the crest. Okay, here comes this sluice way, this is the gallery where the grout hose and maintenance work can be carried out. दिस पोर्शन अपस्ट्रीम एंड का पोर्शन जो ग्राउंड के साथ लगा है बॉडी का डैम की बॉडी का हील है और डाउनस्ट्रीम का टो है. ओके, सो दीज आर द main things and this is spillway, it is provided inside the body of the dam. Okay, and there are few more things we will talk about that also. What is that? That is freeboard. Freeboard is the space between the highest level of water in the reservoir and the top of the structure. Freeboard, this is freeboard. I will show you. This is the distance, this distance is known as freeboard. Okay, next, what is dead storage? Dead storage is a permanent storage below which the water will not be withdrawn. मतलब एक डेड स्टोरेज हमेशा डैम में देनी होती है, उससे उस डेड स्टोरेज का पानी कभी भी यूज में नहीं आएगा किसी भी पर्पस में, लेकिन वो डैम में हमेशा होना चाहिए. ओके, उस डेड स्टोरेज वाले पोर्शन में भी आप कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते. एंड द लास्ट thing is diversion tunnel. What is diversion tunnel? It is a tunnel constructed to divert or change the direction of water to bypass the dam construction site. Okay, the hydraulic structures are built while the river flows through the diversion tunnel. Okay, मतलब एक तरीके का डाइवर्जन फ्लोइंग रिवर का देना ताकि जो भी काम हम लोग को करना है, जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना है वो हम लोग सूखी ज़मीन पे बना सके, उसके लिए हम लोग को डाइवर्जन टनल बनाना पड़ता है. Next we move on to the next topic, that is classification of dam. It is important for you guys. So what are the classifications? The most usual way of classification of dam are first based on function of dam. So what are the classification based on function of dam? First is storage dam. Okay, first is first is storage dam. Main purpose of the dam is to store water. Okay, so storage dams, you can understand by the name also, these are the sole purpose of these dams is to store the water. Okay, during the rainy season the water is stored, and during the dry or summer season that water is utilized for generating electricity and other purpose which are required from the dam. Next is diversion dam. What is a diversion dam? Its purpose is to divert water of the river into an off-taking canal or conduit so that sufficient pressure for pushing water into canals, ditches, or other conveyance system can be produced. Okay, these are kind of shorter dams
which can be used for irrigation or for diversion of a particular stream into a main distant storage reservoir. Okay, these are generally, these are not actual dams, these are kind of temporary dams, we can say, or we can say these are of uh, actually a substitute of the original main dam. Okay, if it has to be supply water into a distant storage reservoir. ओके, इसका हाइट भी काफ़ी कम रहता है, ठीक है, और स्टोरेज का कैपेसिटी भी इसका कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटेंशन डैम। These type of dams are constructed for flood control. When the monsoon season comes, the detention dam retains the water, and after the flood subsides, the water stored in the upstream side can be gradually allowed to move to the downward areas. Okay. Next is debris dam. Its purpose is to retain the debris such as sand, gravel, etc., which is coming with the flowing river. And after the water passes from the debris dam, it is relatively clearer. Okay. Next is coffer dam. कॉफर डैम क्या होते हैं? दीज आर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। ये कॉफर डैम तब बनाए जाते हैं जब हमको कहीं पे डैम बनाना है या कहीं पे बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है रिवर के मेन डैम बनाने के लिए, तो हम लोग कॉफर डैम बनाते हैं ताकि पानी का जो फ्लो है उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकें और एक सूखी जगह में हम लोग कंस्ट्रक्शन अपना कर सकें। तो ये एक टाइप के टेम्पररी डैम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर and design. Dams can be classified like first is gravity dam। ये बहुत बड़े डैम होते हैं, ठीक है, और कंक्रीट और स्टोन मेसनरी के बने होते हैं। ये बहुत सारा वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेविटी डैम की खासियत क्या है? ये डैम अपने वेट के कारण हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ वाटर जो होता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो लगाता है वाटर उसकी बॉडी पे, उसको ये अपने वेट के कारण ही रेजिस्ट कर लेते हैं। यही रीज़न है इसको हम लोग ग्रेविटी डैम बोलते हैं, ठीक है। ये अपने वेट के ही कारण पूरा जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस को रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि अपलिफ्ट फोर्सेस, वाटर प्रेशर, विंड फोर्स, मतलब बहुत सारे फोर्सेस हैं जो डैम को फेल कराने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेविटी डैम अपना वेट के ही कारण पूरा जो भी लोड है, जो भी फोर्सेस लग रहे डैम की बॉडी पे, उनको रेजिस्ट करता है, ठीक है। ये एक सेक्शनल व्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रेविटी डैम का सेक्शनल व्यू इस टाइप का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अभी नेक्स्ट हम लोग बाद में आते हैं, ये बाकी डैम्स के भी आपको सेक्शनल व्यू दिख रहा है। ये आर्च का है, ये बटरेस का है, एम्बैंकमेंट का है, जिसमें अर्थ या रॉक का एम्बैंकमेंट बना सकते हैं डैम का। सो ग्रेविटी डैम्स कहाँ पे ज़्यादा सूट करते हैं? जहाँ पे वाइड वैलीज हैं या नैरो गॉर्ज वाला जो एरिया है, उन जगहों पे ग्रेविटी डैम लगाया जा सकता है, ओके। एग्जाम्पल है कुछ, यूएसए में है, इंडिया में नागार्जुन सागर डैम है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज अर्दन डैम। अर्दन डैम जो अर्दन मटेरियल, सॉइल टाइप के मटेरियल से जो बना होगा उसको अर्दन डैम बोलते हैं। इसमें कंपैक्शन किया जाता है, ठीक है, कंपैक्शन की हेल्प से, और कुछ इम्परवियस मटेरियल का कोर लगा के और डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन लगा के हम लोग अर्दन डैम बनाते हैं, ठीक है। तो दोज आर अर्दन डैम। इसमें हम लोग जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम साइड है उसको वाटर सीपेज से बचाने के लिए उसके फेसिंग वाले पोर्शन में, अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में रिप्रैप या वो स्टोन का कोटिंग लगा सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हम लोग यूज़ करके अर्दन डैम की बॉडी के थ्रू जो सीपेज होना है और फ्रॉम बिलो द डैम जो सीपेज होना है उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मतलब ये काइंड ऑफ लो हाइट डैम होते हैं, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं हो सकती और हर टाइप के फाउंडेशन पे इसको लगाया जा सकता है, ठीक है।
तो इसमें कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इतना ज़्यादा कुछ। नेक्स्ट इज़ रॉकफिल डैम। जो रॉक के फ्रेगमेंट्स और बड़े साइज के जो बोल्डर्स होते हैं उनकी हेल्प से जो डैम बनते हैं, दोज आर रॉकफिल डैम्स। ओके, यहाँ पे भी ये भी कोई, इसमें भी कोई भयंकर आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को हम लोग को ध्यान में नहीं रखने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग सिंपली जो मटेरियल अवेलेबल है लेस कम कॉस्ट में हम लोग इस टाइप के डैम को बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका स्पिलवे यहाँ साइड में बना है। मैंने आपसे बोला भी था कि स्पिलवे विद इन द बॉडी ऑफ द डैम भी हो सकता है, या अगर साइड में हम लोग के पास ऐसी जगह है कि स्पिलवे वहाँ पे इजीली बनाया जा सके तो स्पिलवे साइड से बनाया जा सकता है। और ये रहा इसका डैम का बॉडी, ये रॉकी डैम। ओके, तो इसका भी मेम्ब्रेन जो होता है वो मेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट और एसफाल्ट कंक्रीट का होगा। ओके, ताकि सीवेज ऑफ वाटर को कम किया जा सके। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो, इस टाइप के डैम वैसे अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जो डैम बनाते हैं हम लोग उसमें पैसा लगना है, तो बड़े डैम्स बनाते हैं, तो बड़े डैम्स में आपका कंक्रीट मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो रॉकफिल डैम्स है उनमें इम्परवियस अर्थ कोर दिया जाता है मिडिल में, ताकि सीपेज को रोका जा सके। हमने टाइप ऑफ रॉकफिल डैम भी पढ़ा हुआ है। ओके, सो एक सेंट्रल इम्परवियस कोर देके इसके बॉडी के विद इन द बॉडी ऑफ द डैम सीपेज को रोका जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हम लोग को इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड में, कोर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड में ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करना है कि सॉइल पार्टिकल्स वाटर की पाइपिंग के कारण ना हट जाए, मतलब बह जाए। ठीक है, यही इसी कारण से हम लोग सेंट्रल इम्परवियस कोर देते हैं। इसके साइड स्लोप यूजुअली किसके बराबर रखा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ रॉक। ठीक है, तो वो रेशियो लिया जाता है 1:1.4:1 के बीच में। ठीक है, सो इसका फाउंडेशन, रॉकफिल डैम का फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। जैसे अर्दन डैम में ये लिमिटेशन नहीं थी, अर्दन डैम किसी भी टाइप के फाउंडेशन पर बनाया जा सकता है, लेकिन रॉकफिल डैम के लिए फाउंडेशन सख्त होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ डैम, आर्च डैम, जो आर्च के फॉर्म में होता है। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो, जैसे हूवर डैम है यूएसए में, मूवीज़ की शूटिंग भी होती रहती है। ओके, ये आपका आ गया आर्च के शेप में डैम। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द आर्च डैम। नेक्स्ट इसमें आगे हम लोग देखते हैं, ये आर्च डैम कहाँ पे बनाया जाता है, खासकर जहाँ पे कैनियंस टाइप की, कैनियन जैसी जगह होती है जहाँ पे, वहाँ पे इस टाइप के डैम को बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे जो साइड्स हैं, कैनियन के साइड्स हैं, ये वाला साइड, इधर ये दोनों साइड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, ताकि इसके अंदर गहराई तक हम लोग आर्च एक्शन को रेजिस्ट करना है, तो ये कैनियंस ही तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और दूसरा डैम की जो बॉडी होगी उसकी कन्वेक्सिटी अपस्ट्रीम के साइड में होती है। ठीक है ना, और ये अपना जो वाटर प्रेशर है, वाटर प्रेशर जो मेन फोर्स होता है डैम की बॉडी पे, उसको ये एब्यूटमेंट के, ये जो इसके साइड्स हैं, ये एब्यूटमेंट के ही आर्च एक्शन से रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एब्यूटमेंट्स जहाँ लगने हैं वो वाला दोनों साइड अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, एक इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें ज़्यादा कंक्रीट का यूज़ नहीं होता है। ये आर्च एक्शन के कारण रेजिस्ट करता है वाटर वाटर फोर्स को, तो इसका जो सेक्शन है वो कंपैरेटिवली ग्रेविटी डैम से पतला बनाया जा सकता है। ठीक है, आर्च डैम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सिंगल कर्वेचर, डबल कर्वेचर। ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे सिंगल कर्वेचर का आर्च डैम भी हो सकता है, डबल कर्वेचर का भी आर्च डैम हो सकता है। तो जो जनरली